entrepreneurs who want to be, I mean, they're not entrepreneurs, people who want to become entrepreneurs. Do you have any suggestion for them, or do you have any, like, for the entrepreneurship thing, is there any suggestion or criteria? One fundamental thing. You should produce for market, not for ourselves. Sorry? You should produce for market. Right. So first decide what is demanded and then produce. Rather than producing first and then hunting for market. This is surely not No. নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ওনার প্রথম যে সাজেশন সেটা হচ্ছে যে যেই সামগ্রী আপনি তৈরি করেন না কেন, ওইটা বাজারে এটা চাহিদা আছে কিনা সেটা দেখে আপনি আপনার সামগ্রী তৈরি করেন। আমাদের এখানে কি হয়, আগে জিনিস তৈরি করে ফেলি, এরপরে ওইটা কাঁধে নিয়ে বাইরে হচ্ছে বাজার আছে কিনা ওইটা দেখার জন্য। হ্যাঁ, ওইটা হইলে ব্যর্থতা নিশ্চিত। আর যদি আপনি আগেই জানেন যে না আমার এই জায়গাতে এটার চাহিদাই নাই, তাহলে আমি এটা করবো না, যেটা চাহিদা আছে সেটা করবো, তাহলে সেটার জন্য আপনার অবশ্যই বাজার করতে এবং তার জন্য মানে ব্যবসায়ী হতে আপনাকে সাহায্য করবে। তো এটা হচ্ছে একদম কি, মানে একদম নতুন উদ্যোক্তার জন্য এটা সবচেয়ে বড়। And second thing is, if you are failing, fail fast. So that is the second attempt. अरे कुछ लोग तो कैसे आइडिया, ये उन्होंने कल अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें रीटा बेच थी, अब वहाँ से उन्होंने जैसे वो बोला ना वो लुफा की बात जो बॉडी से कवर लेगी, वो तो बेचते हैं, उनका जो ग्रुप आता है वो इमली यहाँ पेड़ से नीचे गिर जाती है तो कोई देखने भी नहीं जाता, वो इमली इकट्ठी करके यहाँ पे लेके आते हैं। जैसा कि उनके तालाब की मिट्टी है, तालाब की मिट्टी से यहाँ पे पुराने जमाने में 2-3 पीढ़ियों के पहले बाल धोने के लिए तालाब की मिट्टी का यूज करते थे। वो लोग छोटी छोटी मिट्टी उस प्लास्टिक बैग में पैक करके ले आए, उसके भी 10-10 रुपए उन्होंने कमाए। सोचो बर्तन घिसने के लिए। और दूसरा कि उन्होंने बताया ना 90,000 की छाछ उन्होंने बेची, पर छाछ के साथ वहाँ पे आके उन्होंने वो दही का तो उसका जो मक्खन निकला, मक्खन जो हम मक्खन कौन सा देखते हैं, अमूल का देखते हैं जो येलो कलर का है, नेचुरल आप देखो एकदम प्योर व्हाइट होता है, वही मक्खन उन्होंने वहाँ पे बेचा, मक्खन भी बेचा और लोग लेके भी गए। तो वो आइडिया अपने आप ही थोड़ा ढूंढना पड़ता है लोगों को क्या चाहिए। ব্যবসায়ীদের জন্য এই যে প্রথমে যেটা বললো, হ্যাঁ, যে ব্যবসা করার জন্য তো আপনাকে অবশ্যই মানে এরকম ধরেন টাকা ইনকাম মানে আনতে চান, টাকা কামাই করতে চান, এইটা যদি মাথার মধ্যে থাকে তাইলে ওই বলছে যে মাটি বেচেও মানে লাখপতি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটাই থাকতে হবে। আরেকটা হচ্ছে যে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে ফেল যদি করতেই হয়, ব্যর্থতা তো আসবে, তাহলে তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হয়ে যাবে, কারণ যত তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হবেন তত তাড়াতাড়ি রিকভার করবেন, তত তাড়াতাড়ি আবার নতুন করে করতে পারবেন। কিন্তু যত বেশি সময় লাগবে ব্যর্থ করতে, ততদিনে আপনার একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে যাবে যে না আমি সব পারি, তখন যদি আপনি ব্যর্থ হবেন তখন কিন্তু ধাক্কাটা অনেক বেশি। সুতরাং ফেল করলে তাড়াতাড়ি ফেল করেন। अब हम फूड फेस्टिवल के अलावा की कोई क्वेश्चन है तो आते हैं। হ্যাঁ, ফুড ফেস্টিভ্যাল ছাড়া আবার কোনো প্রতিভা আছে? ना बेस आपकी बात कर देते हैं। लगता है कि सबकी इंटरेस्ट देखकर तो वही लगता है कि वहाँ पे पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप इस पर आ जाइए। whatever I've heard from others, I didn't get any information that from one entrepreneur or one product did they develop other kind of entrepreneurship, like वो क्या है ना कि ये जो रोटी बेच रही थी, हाँ, उनका तो पैकेजिंग उन्होंने खुद ही किया, रोटी भी खुद ही बनाई, सब कुछ खुद किया, हाँ। पर जब ऐसा कोई एग्जांपल क्या है कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस भी शुरू हो गया, लाइक कोई जो अगर कोई आचार की बिजनेस करे, एक आचार प्रोड्यूस करती है, पर दूसरा हो सकता है कि उसका जो कांच का बयाम है ना वो प्रोड्यूस करे, so it's kind of value chain. When you talk about a value chain, you bring different enterprise might come up from the one particular value chain. Is there any example that it happened? मैं एक इनोवेटर का एग्जांपल दूंगा। मनसुख प्रजापति यहाँ से वाकानेर के पास, वो पहले मटके बनाते थे, सिंपल के मटके इसमें हम पानी भरते हैं। तो क्या हुआ कि जब भूकंप हुआ तो उसके अर्थक्वेक में सब उसके वो टूट गए, तो
तो एक पेपर वाले ने छाप दिया कि भाई गरीबों के फ्रिज टूट गए, क्योंकि गरीब लोग उसमें पानी ठंडा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि गरीबों के लिए क्या मटके फ्रिज हो सकता है, कि मैं मिट्टी का फ्रिज नहीं बना सकता। उन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया, उसको बहुत पोटेंशियल मिला, आगे बढ़ा। उसके बाद उन्होंने बोला कि और कुछ करता हूं, तो उन्होंने नॉनस्टिक तवा देखा। तो तवा में क्या होता है कि भाई उसमें चिपकता नहीं है, इसीलिए लोग खरीदते हैं। तो उन्होंने थोड़ा मार्केट रिसर्च किया कि भाई मैं फ्रिज तो बना रहा हूँ, नई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो तवा बनाया और वो भी नॉनस्टिक बनाया। अब नॉनस्टिक बनाने के बाद क्या होता है, तवा को पकड़ने में उतारना, कहीं गिर गया टूट जाता था। तो उसने क्या बोला कि जो नॉनस्टिक के तवा तो बढ़िया हैंडल वाले आते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं भी उसको हैंडल वाला बना दूं। तो उसने हैंडल वाला बनाया। तो कंपनी को बोला कि ये तवे के जो हैंडल बनाने हैं तो आप बनाओ। तो वो हैंडल 100 रुपए में देता था और ये तवा बनाता था, उसकी 70 रुपए कीमत थी। तो 170 रुपए तो ऐसे हो गए। तो बंदे ने बोला कि यार मुझे तो तवा की इतना डिमांड है, उन्होंने खुद क्या कि हैंडल बनाने की कंपनी बनाई। वो खुद हैंडल बनाता है, वो हैंडल वो उसमें फिट करता है। ठीक है, आज की तारीख में एक ही प्रोडक्ट से शुरू किया था। पहले मटका बनाता था, फिर फ्रिज बनाया, वो फिर उसके बाद नॉनस्टिक तवा बनाया, मिट्टी का प्रेशर कुकर बनाया जिसमें सीटी भी बनती है। ठीक है, मिट्टी का ढक्कन वाला बॉटल बनाया, किचन सेट बनाया, दही की हांडी, ऐसे तो बहुत उन्होंने 500 वैरायटीज है मटके। ठीक है, तो एक के अंदर कितना प्रेजेंटेशन। अब उसमें शुरुआत में क्या था कि वो बंदे को एक दिशा देनी पड़ी। उसको पहले बार वो जब उसने बोला कि भाई मुझे हैंडल बनाना है, उसमें हैंडल कैसा लगेगा उनको पता नहीं था, कौन सा मटेरियल का लगेगा। तो हमारे एक अच्छे साइंटिस्ट है महेश पटेल करके, तो उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। उसको हैंडल बनाने के लिए डिजाइनर से मिलवाया, उसके बाद उनको पैकिंग कैसे करना है उसके लिए बॉक्स वाले को मिलवाया। 1-2 बार उनको मीटिंग करवानी पड़ी, फिर उनको पता चल गया कि ये सारी चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। आज की तारीख में उनको नया पैकिंग करने के लिए महेश भाई को पूछना नहीं आता, वो खुद कर लेता है। नई प्रोडक्ट लेके हमें गिफ्ट देने आते हैं, तब पता चलता है इसने वो और भी बना। दिस इज रियल एंटरप्रेन्योर। और आज की तारीख में वो जिस घर में रहता था उसके बाजू में फैक्ट्री, फिर 10 इस तरफ घर थे, 10 इस तरफ घर थे। आज की तारीख में वो 10 घर थे ना, वो भी जगह उसने खरीद ली। लो आप एक जगह का 30 लाख रुपए ना, मैं 40 देता हूं, दूसरी जगह घर ले लो मुझे दे। ऐसे करके पूरी 2 लाइन खरीदी और आज की तारीख में उनकी 2 फैक्ट्री है ऐसे बर्तन बनाने की। 100 से 150 लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं और 2 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं। और उसके अकाउंट में जैसे आप पैसा डिपॉजिट करोगे, विदिन 1 आवर कुरियर कंपनी वाला आपके घर में डिलीवर करेगा। इतना उसने एस्टेब्लिश कर रखा है कुरियर कंपनी के साथ पूरा देश भर। तो उनके कुछ प्रोडक्ट कुरियर कंपनी के ऑफिस में ही पड़े होते हैं, उनके गोडाउन में। जैसे वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा तुरंत डिलीवर करेगा। और ऐसा नहीं कि इंडिया में, आप दुबई में मंगवाओगे दुबई में भी मिलेगा। So do you support the other entrepreneurs like आप क्या सपोर्ट करते हैं कि यहाँ तो like hundreds of entrepreneurs they come and this नहीं, हम only for grassroots level की जो है उनको सपोर्ट करते हैं कि जिनको बैंक वाले भगा देते हैं। नो एक्सपेंशन के लिए कि वो एक प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं पर आपके पास एक आइडिया है कि इस प्रोडक्ट से तो ऐसा भी किसी को भी थोड़ा एक बार प्रोत्साहन मिल जाता है, फिर तो वो अपने आप दौड़ता है। फिर जहाँ अटक जाते हैं वहाँ पर हमारे और कोई ऐसे भी इंटरप्रेन्योर होते हैं, देखो मैं अच्छी बात बताता हूँ, बुरी भी बताता हूँ, कि खुद बिजनेस भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं इंटरप्रेन्योर, इसका मतलब है मैं सब कुछ करूँगा और वो करने भी नहीं देते क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मैं जैसा बोलूँ ना वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे भी इनोवेटर है कि अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो वही रहे। क्यों होता है कि भाई ये अच्छे इंटरप्रेन्योर बोले कि भाई मैं आपको 20% रोयल्टी नहीं 50% मिलनी चाहिए, नहीं जाती है क्योंकि 50% तो कोई रोयल्टी नहीं दे सकता। ठीक है, 10% दे रहा है तो सबसे बड़ा। ऐसे भी कुछ इनोवेटर है कि जो अपनी प्रोडक्ट कितनी महंगा कर दिए कि लोग खरीदने नहीं वाले खरीद पाए। ऐसे भी है। मार्केट में टिक नहीं रहा। एक हमारे एक इनोवेटर है बच्चों के केसिया करके सौराष्ट्र में, उसने एक ट्रैक्टर बनाया बेसिकली, और वो ट्रैक्टर के इनोवेशन पे हमारे पास आया था। फिर अभी पूरे गुजरात में नीलगाय की बहुत उसकी बहुत दिक्कत है, बंदर की बहुत दिक्कत है। फिर वो जो सुअर आता है ना, तो वो सारे खेतों में बहुत नुकसान करते हैं। उसके लिए उसने एक झटका मशीन बनाया है जो फेंसिंग के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक, इसमें इनोवेटिव डिजाइन है कि वो हर 3 सेकंड में 1 सेकंड ही इसमें पावर आएगा
और वो भी सोलर से, बहुत बड़ी यूनिक उसने डिजाइन बनाया है। अब वो बिजनेस इतना चल गया है कि उसका बेटा एसबीआई में परमानेंट जॉब पे था, वो भी छोड़ के बिजनेस में आ गया, पूरे गुजरात में उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अभी अफ्रीकन कंट्री में बहुत डिमांड है, लेकिन जितनी गुजरात की डिमांड है, आज आप फोन करोगे तो बोलेंगे कि आपका ऑर्डर 15 दिन के बाद आएगा। कितना मतलब आप बोलोगे कि मैं 4000 ज्यादा दूंगा, फिर भी बोलेगा 15 दिन के बाद आएगा। तो अफ्रीका में भी बहुत डिमांड आ रही है, तो उन्होंने बोला कि इतने उनका मैं कर नहीं पाऊंगा, उन्हें 9 माल की एक बिल्डिंग बना रहा है कि ऊपर प्लास्टिक का बॉडी बनेगा, नीचे उसके स्पेपर बनेंगे, फिट होके पैकिंग होगे और नीचे से डिस्प्ले होगा। ऊपर से बनता है कि नीचे से निकल जाएंगे। तो इतना बड़ा अभी उनका अभी अपनी रिसर्च की बात है, 5 साल पहले तक राजकोट में 10 बाय 10 की रूम में हमने देखा था उनको डिस्कशन करने के लिए 10। आज पूरा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। वो भी 150 लोगों से काम करता गोपाल भाई वाला भी बता सकते हैं। गोपाल भाई का इनोवेशन है वो कार्बन फाइबर का, उन्होंने आइडिया दिया था, इसके आधार पे आप परेश पंचाल उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसे भी एग्जांपल है, आइडिया इनोवेशन एक बंदे ने किया, दूसरा इनोवेटर इसमें वैल्यू एडिशन में हेल्प करता है, और तीसरा कोई उसको मार्केट में, ऐसा भी एग्जांपल है, मल्टीपल लोग मिलके उसको आगे लेके गए। तो अभी काफी सारे ऐसे हमारे जो फैब्रिकेटर जो इनोवेटर है, अगर कोई ऐसा आइडिया आता है तो हम उनको बोलते हैं कि यार इसको हेल्प कर दो, तो 2-4 दिन 8-10 दिन उनके घर जाके उनकी वर्कशॉप में जाके वहाँ पर बना लेता है। আমি অ্যাকচুয়ালি ওনাদেরকে যেটা প্রশ্ন করছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা দ্রব্য মানে ধরেন একটা লাস্ট একটা পণ্য তৈরি হওয়ার আগে ব্যালেন্সিং তো আপনারা বুঝেন না যে মানে একটা পণ্য থেকে আরেকটা পণ্য বা একটা পণ্য তৈরির আগে অনেকগুলো প্রক্রিয়া থাকে, ওইটার পরে বিক্রি পর্যন্ত অনেকগুলো প্রক্রিয়া থাকে, এর মাঝে অনেকে কিন্তু জড়িত থাকে না, পুরো চেইনটার মধ্যে অনেকে জড়িত থাকে। তো এই পুরো এইটার মধ্যে থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন ব্যবসা তৈরি হতে পারে। কেউ যদি সুতা বানায়, কেউ যদি রং করে, কেউ যদি কাপড় বানায়, এভাবে করে কিন্তু পুরো একটা আমি ওনাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওনাদের কাছে এমন অভিজ্ঞতা আছে কিনা যে একটা ব্যবসা দিয়ে শুরু করছিল কিন্তু ওই ব্যবসা থেকে দেখা গেছে ডালপালা ছাড়া এখন অনেক ধরনের ব্যবসা। এইটাই ওনারা অনেকগুলো মানে ওনাদের এক্সাম্পল দিল যে এক লোক প্রথমে ওই যে মাটির মটকা বানায়, সে মটকা থেকে পরে মাটির ফ্রিজ বানাইছে, মাটির ফ্রিজ থেকে মাটির তাওয়া বানাইছে, মাটির তাওয়া থেকে সে প্রেসার কুকার বানাইছে। মানে এখন দেখা যায় যে মানে তার মানে কম না, মানে বিশাল একটা। আবার আরেকজন হয়তো এই করছিল যে খেতে খামারে পশু চলে আসে না, এসে ঘাস খেয়ে ফেলে, ফসল খেয়ে ফেলে। তো ওনারা একদম মানে ইনোভেটিভ একটা করছে যে 3 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড পর পর হালকা একটা আসবে, ইলেকট্রিক আসবে, সোলার না, তাইলে হবে কি যে পশুপাখি যখন আসবে তখন সবটাই 6 সেকেন্ড টাইম আসবে। এখন এটা এমনই ডিমান্ড হয়েছে যে আগে 10 বাই 10 একটা অফিসে বসতো, এখন 9 তলা বিল্ডিং করছে যে এটার মানে এক এক ফ্লোরে এক এক Yes. Do you have any questions? So we are done from ourselves. I'll ask them to you. Okay. Ask. I've just one question, yeah. The model that you presented yesterday with the women improvement in Russia, can you tell me in summary how long will it take to build that up and what kind of coaching is needed and what is to develop the support service? Is an NGO doing that? Can you tell something about that? How difficult is that? Level of difficulty depends upon who is handling. First issue is identifying the lead sector. We should match with local skills which are available, raw material which is available, backward linkage which are available. And market we should not look locally, but we have to look outside. So any product which has demand at the moment, which could be dislocated and could be established in rural areas. There are a lot of products, especially agri-based products, which are advantageous in rural areas.
So this is the first task. Once it is over, then the task of group formation. Now group dynamics is a bit dicey. Depends upon if somebody is already working in group formation on other group. Then you have ready groups. So it is a question of some of them will have skills, some of them will have to be important skills, and depending upon the nature of product, it will take some time in skill formation. Side by side, we have to organize for infrastructure. So infrastructure could be there are two models. We have tried both. One is common infrastructure, one big hall, and within big hall you have 10 feet space for each. Workstations for it. It is a common facility center which is owned by the group. And investments come from either from group or some donor agency can chip in and create infrastructure. Okay, we will create infrastructure, and within that is what everybody operates because of the same product, which has one storeroom kind of thing. Is a set layout. Creation of infrastructure itself takes time. Land, there is a land purchase, buildings, another one. Another model is people operating from their homes. For example, we had promoted a group in ready-made garments. So cutting will be done at a common place. So common facility. So we had one expert tailor who would cut through with a machine. So you just put that machine and like a butter, you have this much of clothes and it just goes like this and it cuts. And after cutting, they dump in the three-wheeler and distribute in every house. There were about 100 machines were put, all machines brand new, electric